20,000 की रेगुलर SIP 25 साल तक और धीरे धीरे 1 करोड़ का पैसा खो दिया। Imagine this, a disciplined Indian investor doing everything right, no gambling, no random trading, no crypto madness, no leverage addiction. Just a simple 20,000 monthly SIP for 25 years and still quietly losing more than 1 crore. Not because market crashed, not because he stopped investing, not because he made emotional mistakes. He actually stayed disciplined, and that is where investing becomes very uncomfortable. Today's discussion is not about gambling, trading, or financial stupidity. It is about something far more dangerous. The mathematics people never bother calculate. सबसे पहले एक चीज क्रिस्टल क्लियर कर देता हूं. This is not an anti-mutual fund podcast. Actually, honestly बोलूं, SIP कल्चर ने इंडिया को फाइनेंशियली ट्रांसफॉर्म किया है. क्रोर्स लोग FD मेंटेलिटी से निकले, इक्विटी ओनरशिप तक आए, डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग सीखा because of SIP. So let's first admit the obvious. Passive investing globally won for the average investor. Why? Because most traders fail. Most active funds market beat नहीं करते. Emotions returns destroy कर देते हैं. Over trading capital destroy करता है. एक लॉन्ग टर्म स्टडी का ब्रूटल कंक्लूजन है कि मात्र 16% डे ट्रेडर कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल होते हैं आफ्टर कॉस्ट. Just 15 to 16%. Think about that. So yes, for most people, simple disciplined investing probably works better than financial hyperactive. मुझे लगता है इन्वेस्टिंग में लोग wrong enemy choose करते हैं. They think me versus market. No. Real competition is against inflation, fees, taxes, bad behavior, impatience and emotional decision making. अब आते हैं uncomfortable mathematics पे. म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री खुद कंपाउंडिंग का मैजिक एग्रेसिवली सेल करती है. 15% CAGR कैलकुलेटर्स, रिटायरमेंट कैलकुलेटर्स, SIP करोड़पति प्रोजेक्शंस. फेयर अनफ. तो चलिए समझते हैं मैथमेटिक्स. रिवर्स में अप्लाई करते हैं. सपोज ₹20,000 मंथली SIP 25 years. और नाउ इमेजिन, just because of the fee drag, underperformance, expense ratio difference, or inability to meaningfully outperform low-cost passive structure, your final wealth gap quietly becomes close to or even beyond ₹1 crore over long periods. Same compounding that create wealth can also silently transfer wealth. People underestimate percentage. Compounding linear नहीं होता, geometric होता है. इंडस्ट्री आपको प्राउडली दिखाती है, देखिए 15% पे पैसा कैसे ग्रो करता है. एक्सीलेंट. लेकिन फिर सवाल पूछिए, इफ कंपाउंडिंग इज सो पावरफुल, then why we are so casual about 1-2% annual drag for 25 years? You don't want to earn that extra crores, or more importantly, you don't even want to think about where that crore quietly went. अब ध्यान से मेरी बात समझिए. This does not mean all active funds are bad, all mutual funds useless, or everyone should suddenly become stock picker. नहीं. For many people, simple, disciplined, passive investing is still the smartest practical path. But problem तब start होती है जब लोग कहते हैं, लोग question पूछते हैं, because somewhere between convenience and intellectual laziness, a very large amount of wealth quietly disappears. अब यहाँ पे most people extreme conclusion निकाल देते हैं. If active investing difficult है, then learning useless है, that logic dangerous है, passive investing won because human emotional है, discipline difficult है, patience rare है, and most people don't have time. And honestly, if you don't have curiosity, don't have temperament, don't have willingness to study, don't have patience, then maybe quietly giving up that extra crore over decade is still the better decision. Yes, I said it. लेकिन मुझे इन्वेस्टिंग वर्ड का सबसे इंटरेस्टिंग कंट्राडिक्शन क्या लगता है? People spend years selecting mutual funds, comparing fund managers, analyzing rolling returns, studying AMCs, while simultaneously claiming human being cannot learn investing. Interesting contradiction. मुझे लगता है इन्वेस्टिंग स्लोली इंडस्ट्रियलाइज हो गया है. मीनिंग आउटसोर्स थिंकिंग, आउटसोर्स कन्विक्शन एंड आउटसोर्स ओनरशिप. And standardization has benefits, huge benefits, but sometimes
It also kills curiosity. Passive investing is a financial revolution, but turning it into intellectual surrender is dangerous. अब एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ और, रिटेल इन्वेस्टर के पास एक एडवांटेज होता है जो लार्ज इंस्टीट्यूशंस के पास ऑफन नहीं होता. एबिलिटी टू स्टे स्मॉल, पेशेंट, फ्लेक्सिबल एंड कंसंट्रेटेड. लार्ज फंड लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट फेस करते हैं, क्वार्टरली प्रेशर होता है, रिडम्पशन प्रेशर होता है, मैंडेट प्रेशर होता है. रिटेल इन्वेस्टर क्वाइटली सिट कर सकता है. मनी इज ऑफन मेड बाय सिटिंग, नॉट हाइपर एक्टिव ट्रेडिंग. तो रियल डिबेट पैसिव वर्सेस एक्टिव नहीं है. रियल क्वेश्चन है हाउ मच रिस्पॉन्सिबिलिटी आर यू विलिंग टू टेक फॉर योर फाइनेंशियल फ्यूचर. मे बी आंसर एक्सट्रीम में नहीं है. मे बी रियल आंसर लेयर्ड इन्वेस्टिंग है. समथिंग लाइक core SIP and index investing, disciplined long-term ownership, some active learning, maybe small tactical allocation. Not blind gambling, not blind dependence. One more uncomfortable truth. High savings plus moderate returns often beat low savings plus aggressive return fantasies. Most people fail not because returns were low. They fail because consistency low थी, patience low थी, सेविंग्स लो थी. मैं रिपीट करता हूं, SIP is one of the greatest financial tools ever created. For most people, it's probably the best starting point. But somewhere along the way, इस starting point को final destination बना दिया गया. Passive investing brilliant है, passive thinking dangerous है. And somewhere between blind speculation and blind financial dependency lies real investing. मेरे कहने का मतलब आप समझिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि SIP आपके लिए अच्छा नहीं है. SIP आपका स्टार्टिंग टूल है, लेकिन उसके साथ आपको स्टॉक इन्वेस्टिंग भी सीखना पड़ेगा. आपको अपने इन्वेस्टिंग स्टाइल को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, अपने कोर नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा. पैसिव इन्वेस्टिंग के साथ आपको एक बेटर पोर्शन एलोकेट करना पड़ेगा अपने टाइम का, अपने नॉलेज का, सो दैट आप वेल्थ जनरेट कर सकें. आप सिंपल मैथ्स को समझिए, बढ़िया से बढ़िया म्यूचुअल फंड इंडेक्स को बीट नहीं करता. मैं कहता हूं एवरेज रिटर्न मान भी लेते हैं, जो सारे इन्फ्लुएंसर कहते हैं, सारे म्यूचुअल फंड कहते हैं कि 15% आएगा, तो स्टिल आपको 5 साल लगेंगे पैसा डबल करने में. और ये 10 साल 12 साल तब रहेगा जब आप सस्टेन्ड रखें. आप इन बिटवीन इन्वेस्टिंग करते हैं तो नहीं है, क्योंकि इट्स ए पीरियड ओवर लॉन्ग रन. SIP और म्यूचुअल फंड का लॉन्गर ड्यूरेशन होता है. मेरा ये कहना है कि इस पैसिव इन्वेस्टमेंट वेल्थ के साथ आप नॉलेज गेन करिए और कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टिंग के साथ ट्रेडिंग माइंडसेट लाइए. ट्रेडिंग का मतलब FNO ट्रेडिंग नहीं होता. मैं ये अलग इशू बनाऊंगा कि स्टॉक ट्रेडिंग और FNO में ऑप्शन कैसे बेटर हैं, या स्टॉक के क्या एडवांटेज हैं, ऑप्शन के क्या एडवांटेज हैं. लेकिन मेरा ये आज का बेसिक पॉइंट है कि ट्रेडिंग इज एन एडेड अल्फा ओवर योर रेगुलर इन्वेस्टिंग इन SIP हो या म्यूचुअल फंड हो. उसके ऊपर आपको एक लेयर क्रिएट करनी चाहिए. आप अगर एक सिंपल अपने सैलरी से इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न चाहते हैं तो बैठे रहिए. अगर आपके पास 1 घंटे भी नहीं है, 1.5 घंटे भी नहीं है, द काइंड ऑफ टूल्स विच आर अवेलेबल, हाउ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वन. मेजर फंड्स के पास क्या था? डेटा था, डिसिप्लिन था, डेलीगेशन था. आज वो डेटा रिटेल के पास भी है. डिसिप्लिन आपको अपनी हैबिट से पैदा करनी होगी, और डेलीगेशन इसलिए इंप्रूव हो रहा है कि द काइंड ऑफ टूल्स एंड ऑटोमेशन ट्रेडिंग में जो आ रहा है, जो एल्गो आ रहे हैं और जिस तरह के टूल्स आ रहे हैं जो आपके ऑर्डर्स को, बास्केट ऑर्डर्स को, कॉम्प्लिकेटेड ऑर्डर्स को भी एग्जीक्यूट करेंगे, वो डेलीगेशन. तो जो इंस्टीट्यूशन की एडवांटेज डिसिप्लिन, डेटा और डेलीगेशन की थी, आज वो रिटेल के पास है. आपको नहीं चाहिए. आपका ये 1 घंटे 2 घंटे का अल्फा आपके लिए करोड़ों की वेल्थ एक्स्ट्रा जनरेट कर सकता है. आप सोचिए, जो पैसा आप 5 साल 6 साल में डबल कर रहे थे, अगर वो आप 2.5 साल और 3 साल में डबल करने लगेंगे, तो आप सिंपल मैथमेटिक्स बनाइए. और आप तो बहुत से लोग थोड़ी बहुत तो मैथ्स पढ़े ही होते हैं. आप ये समझिए कि आप खुद कैलकुलेट करिए कि अगर आप 2.5 साल में डबल कर रहे हैं तो 10 साल में आपका कितना होगा. 2.5 में डबल, 5 में 4 टाइम्स, 7.5 में 8 टाइम्स, एंड 10 ईयर्स में 16 टाइम्स आपकी वेल्थ हो जाती है. लेकिन वही अगर आप म्यूचुअल फंड में करते हैं, 15% की ग्रोथ लेते हैं, तो 4 टाइम्स होती है.
4 टाइम वर्सेस 16 टाइम्स, अगर आपके पास 1.5-2 घंटे नहीं है, आपके पास सीखने का मादा नहीं है, आपके पास पेशेंस नहीं है, तो आपके लिए SIP एंड म्यूचुअल फंड एंड इंडेक्स इन्वेस्टिंग इज द बेस्ट. But the people who want to create generational wealth, they have to take a step, they have to devote time, they have to devote their patience in learning and executing stock trading. Trading does not mean satta bazaar. Trading is a structured financial इंस्ट्रूमेंट जो आपके लिए जनरेशनल वेल्थ क्रिएट कर सकता है. मैं बार बार इसको इंफेसाइज कर रहा हूं कि ट्रेडिंग का मतलब गैम्बलिंग नहीं है. ट्रेडिंग को अगर आप स्ट्रक्चर और लर्निंग वे से करेंगे, आप अपने SIP और स्टॉक इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक लेयर्ड बनाएंगे, सेव, इन्वेस्ट, एक्टिवेट एंड कंपाउंड, डेफिनेटली आपकी ग्रोथ ज्यादा बड़ी होगी. यह निर्णय आपका है कि आपके पास वो 2 घंटे हैं या नहीं है, क्योंकि पैसा आप बनाएंगे, मैं नहीं बनाऊंगा. जो ये समय देगा पैसा वो बनाएगा. निर्णय आपका ही है. We'll see you in the next episode. Until then, learn, earn and return with us.